So, good evening, everybody. I hope many people have joined now. There are 54 students joined already. So, I just shared one video animation regarding cathode ray discharge tube experiment. But ये तो मैंने भूल ही गया कि ये इंडिया में तो नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी अच्छी चीज करने जाएंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। तो मैंने सोचा कि आप चुपचाप उसको सुनोगे, बट आप सुनने में तो नहीं थे। तो अब ये आदित्य बोरीवली का लड़का देखो, सो व्हाट ऑल ही इज डूइंग। I hope I can you can hear me. If I'm not audible, please let me know, because I'm not able to understand whether I'm audible or not. Animation was not audible. That is fine. That was for you guys to look at it. But मैंने देखा तो तुम लोग उसके ऊपर से कुछ बच्चे तो होते ही है, उनको पढ़ने तो नहीं रहता, वो बच्चे जानबूझ के कुछ ना कुछ उसमें करने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे तो बच्चे मैंने देखा है बहुत। तो इसलिए ये सब चीजें मुझे लगा कि बच्चे देख पाएंगे, एक ट्राई तो करना चाहिए एज अ टीचर। तो मैंने एज अ टीचर वो ट्राई करा, और रिजल्ट ये है कि तुम लोग उसके लिए डिजर्व नहीं करते कि वैल्यू एडिशन टीचिंग में तो आप यकीन नहीं करते। आपको तो नॉर्मल ऐसा सामने दिखे और पढ़ाते रहो बस। क्योंकि आपका हर जगह वो जो पंगा लेना रहता है ना, तो वो तो मैं देख लिया, कुछ बच्चे तो होते ही है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग देयर। सो अभी वो एनिमेशन मैंने बंद कर दिया। I think that is not needed. What I will do is I will start explaining where SGCS sir has stopped. He told me that you guys have started with second topic, atomic structure, or it is also specially called as chemical reaction. Yeah, atomic structure. So this topic, and he told me that cathode ray discharge tube experiment was already explained. Cathode ray experiment was already explained. This is all about discovery of what? Discovery of electron, done by J.J. Thomson. So I guess now is my voice is audible now? Still the problem? Audio is still a problem. What? So yes, me, you have to copy whatever I write on the board. So we are just starting with this. So I think we are now good to go. Everybody has joined. 72 students have already joined. Now we are good to go. So in the beginning, what I was done is I just shown the animation of cathode ray discharge tube experiment, which was already explained by SGCS sir. So आप लोग अभी फिर से वो जो स्क्रीन शेयरिंग मैं करूंगा, तब आपने वो कीड़ा नहीं किया, तो मैं I want to show that particular animation again if you want, or we can simply go okay as per board lecture. ठीक है, मैं एनिमेशन फिर से करूंगा। तो एनिमेशन देख लो, वीडियो ऑडियो में बोलते रहूंगा वो क्या बोल रहे हैं, so you just focus on that.
A vacuum pump is used to evacuate the discharge tube. The cathode of the tube is connected to the negative terminal of the battery, and the anode of the tube is connected to the positive terminal of the battery. When the pressure of the tube was reduced to 0.001 millimeter Hg, and 20 kV was applied, at the end of the tube, a glow was seen on the walls of glass tube. The rays emitted by the cathode travel towards anode. The attraction of rays towards anode reveals that the rays carry negative charge. Properties of cathode rays are 1. When any object is placed in the path of the cathode rays, these rays cast shadows. This shows that cathode rays travel in straight line. 2. When a wheel was placed in the path of cathode rays, the wheel rotates. This shows that rays consist of some particle and some kinetic energy. 3. In the presence of an electric field, the rays are deflected towards the positive plate. This confirms that cathode rays consist of negatively charged particles. 4. In the presence of a magnetic field, the rays are deflected. This shows that the cathode rays are affected by the magnetic field. Okay. Now we just start with this. I hope my voice is audible to you guys. You just tell me that so that we can continue from with this. So as SGCS sir told me that discovery of that electron thing was done already, but still I'll explain because I want to explain discovery of proton also. So that's why I just explained that again. So now you can see that there was a glass evacuated tube. Evacuated tube means inside that, okay, no outside gas can enter. So इसके अंदर gas particles को रखा गया था, gas samples, okay, and you guys know gases are bad conductor of electricity. मतलब gas के through electricity नहीं जा पाएगा. तो यहाँ पे भी ये situation होगा. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो एटमॉस्फेरिक गैस का जो प्रेशर होता है, यानी कि अभी का प्रेशर क्या 1 एटमॉस्फेयर, मतलब भर भर के गैस है बहुत. सो उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, बिकॉज गैस उतना हाई लेवल का गैस क्या करता है, वो अलाउ नहीं करता. ओके, अलाउ नहीं करता करंट को पास करने के लिए. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू यूज वैक्यूम पंप so that some residual gas is present inside that liquid, so present inside that glass tube. So उसके बाद क्या करना पड़ेगा? एक हाई वोल्टेज बैटरी, ओके, उसमें आपने देखा रहेगा ऑलमोस्ट 10 से लेकर 20 किलो वोल्ट का बैटरी आपको अप्लाई करना पड़ेगा. बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज बैटरी आपको अप्लाई करना पड़ेगा. सो हाई वोल्टेज बैटरी आप अप्लाई करोगे और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है विच इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल स्टिक एंड द बिगर स्टिक रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल. सो ये जो जिसको आप मेटल रॉड को कनेक्ट करोगे उसका नाम हो जाएगा कैथोड. कैथोड मतलब पहले से नाम डिसाइडेड नहीं होता. ये जो मेटल रॉड और ये जो मेटल रॉड होगा दे आर एक्चुअली सेम थिंग, बट द मोमेंट यू कनेक्ट दैट टू अ battery, now they will act like something. For example, if you connect that metal rod to a negative terminal, that will act like a cathode, and the one which is connected to a positive terminal will act like an anode. So that means now this is positive in nature and that of this is negative in nature. So this is the basic working or construction of or schematic of cathode ray tube. Okay,
Now, how it works, it was actually explaining there. Am I lagging? My video is lagging. Okay, okay, fine. So अभी देखो ये सब छोटे छोटे पॉइंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम का है, जो प्रेशर अंदर का कितना था 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. आप मत समझना कि मर्क्यूरी डाला है क्या, नहीं. मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इस प्रेशर का यूनिट होता है, और वो कितना है वो ध्यान रखना जरूरी है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब वैल्यूज पूछा जाता है, और जो वोल्टेज कितना रखते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है. ओके, सो उसको आप नोट करते जाओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. ये डायग्राम भी बना लेना. नाउ as it was saying, you can clearly see there. तो इसमें क्या करना पड़ता है, the moment you switch it on, क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी इस पे पास होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास होते ही that will hit the gas particles. Now गैस पार्टिकल्स को एक धक्का मिलेगा, एकदम प्रेशराइज धक्का मिलेगा, तो ये क्या होता है कि गैस पार्टिकल होगा, उसमें जो भी अंदर उसका. देखो अभी क्वेश्चन आ सकता है कि गैस पार्टिकल्स को क्यों लिया. तो आपको याद रहेगा, सर ने बता रहेगा डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी से जो आगे जो डिस्कवरी शुरू हुआ, वो उसका वेरी फर्स्ट थियरी ये था. सो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी इज ऑल अबाउट saying that atom is indivisible, atom cannot be divided. So J.J. Thomson came and he said that why can't we divide atom? Atom can be divided. So for that purpose this experiment was done. Okay, atom divide कर सकते कि नहीं कर सकते वो चेक करने के लिए ये किया गया. And out of solid liquid gas, आपको पता है गैस ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे ऑलरेडी मैटर जो है वो एटॉमिक लेवल में है, अदरवाइज आई वुड से माइक्रो लेवल में है. एटम चलो हमें पता भी नहीं था, बट माइक्रो लेवल में ये तो बोल सकते हैं, क्योंकि सॉलिड में एकदम वो क्लस्टर्ड फॉर्म में है, लिक्विड में भी वो कनेक्टेड है, गैस में ही वो बहुत ज्यादा क्या है, डिस्पर्स्ड है. सो इसके लिए वो गैस एज अ सैंपल उसने लिया, गैस एज अ सैंपल उसने लिया. सो और उसका उसने डिवाइड करने के लिए कोशिश की, उनको तोड़ने के लिए उसने कोशिश किया. Now what happens when the electricity hits high voltage, मतलब एकदम धक्का एकदम जोर से मिलेगा. Now when it hits that, यहाँ पे हुआ क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन या हीलियम गैस की बात करूं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हिट करा, what happened, electrons were loosely connected, this we know today. electrons were loosely connected, तो ये हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन इनमें से इजेक्ट आउट हो गया, इलेक्ट्रॉन इनमें से इजेक्ट आउट हो गया, और जो भी गैस पार्टिकल्स इसके अंदर थे ये हो गया आयोनाइज, आयोनाइजेशन हो गया इनका. आयोनाइजेशन मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो खुद एटम क्या था, पहले न्यूट्रल था, अभी आयोनाइज हो गया. सो व्हेन इट हिट दैट, सो ये आयोनाइजेशन प्रोसेस चला, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये जो भी गैस पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिवली चार्ज बन गए, और उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. नाउ लुक एट द स्कीमेटिक हियर. ये जो एनोड है वो नेगेटिवली सॉरी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये तो स्पेशली आपको मालूम पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इजेक्ट आउट हुआ, दे विल हिट द एनोड, एनोड को हिट करेंगे, और यहाँ पे आप एक एमीटर लगा दोगे, एमीटर विल डिटेक्ट द करंट. सो एमीटर लगा दोगे तो वो डिफ्लेक्शन से आपको मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग द एनोड एंड दे आर नाउ गोइंग इनसाइड द सर्किट. सो इससे उसको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे गैस का आयोनाइजेशन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन. उसने उसका नाम इलेक्ट्रॉन करके नहीं बोला था, उसने उसका नाम कैथोड रे बोला था. कैथोड रे करके इसलिए बोला उसने कि इससे उसको मालूम पड़ा कि सम रे इज गेटिंग फॉर्म्ड इन बिटवीन एंड इट इज गोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. उनका डायरेक्शन जो है कैथोड टू एनोड है, इसलिए एज पर इट्स डायरेक्शन ही कॉल्ड इट एज कैथोड रेस. तो वेरी फर्स्ट उसने ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है उसका नाम उसने कैथोड रखा, and he called it as cathode rays. Now the question comes, what is its behavior? उसका behavior क्या है? उसके लिए उसने क्या करा, ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगा उसको उसने फोकस किया उसको, मतलब हर जगह से जाना नहीं चाहिए, एक स्पेसिफिक जगह पे जाना चाहिए, इसलिए उसने फोकस किया. तो था 1 सेकेंड. So he applied some slit. Slit मतलब आप कुछ नया मत समझना, वो फोकस करते टॉर्च वगैरह में होता है, आपको पता है. स्लिट लगा दिया, अभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ यहीं पे आ सकता है, मतलब जो गैस पार्टिकल ये डायरेक्शन में है
वो लोग उसको हिट करेंगे एंड ये जो आयोनाइजेशन होगा एंड देन दे विल स्प्लिट इनटू दिस वन कैटायन एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी आपको ये जगह पे हिट करेगा। दैट्स व्हाई व्हाट ही हैज डन, ये जो एनोड है वहां पे इसको कोट किया उसने बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट मटेरियल। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, ये कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर अट्रैक्ट होता है समझो, मतलब उसके ऊपर गिरता है समझो, फॉल होता है समझो, दैट टाइम व्हाट हैपेंस, इट विल स्टार्ट ग्लो। ओके, इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। तो ये जो मटेरियल है इसको और ये जगह को भी क्या करा, फ्लोरोसेंट मटेरियल से हिट करा दिया, कोट किया दिया करा, तो उसका नाम है जिंक सल्फाइड, वन ऑफ द एग्जांपल्स, otherwise you can take any other examples also. So now what happens, since now we directed them to happen this in this direction only, so उसको यहाँ पे सिर्फ ग्लो मिला, तो उससे उसको मालूम पड़ा कि ये जो कैथोड रेस है, कैथोड रेस travel in straight line, okay, cathode rays travel in a straight line from cathode to anode। ये पहला आपको postulate लिखना है, okay, cathode rays travel in a straight line from cathode to anode, this is the very first postulate or observation that he has made। next उसने क्या किया, उसमें भी आपने देखा रहेगा, एक उसने पिन व्हील रखोगे, पिन व्हील मतलब एक वेटलेस फ्रिक्शनलेस व्हील रखोगे, वेटलेस फ्रिक्शनलेस व्हील रखोगे, तो ये जो रे ने क्या कर दिया, उसको रोटेट किया। उसको रोटेट करने से ये समझ में आता है कि ये जो भी रेडिएशन हिट कर रहा है उसके पास मास होना चाहिए। क्यों? फोर्स तब लग सकता है जब उसके पास मास होगा, आपको पता है F इज इक्वल टू एम ए करके आपको पता है, तो इसलिए मास होना जरूरी है। और मास ही नहीं, उसके पास एक्सेलरेशन भी होना जरूरी है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब उसके पास वेलोसिटी होना चाहिए, उसके पास स्पीड होना चाहिए और उसके पास मास होना चाहिए। जब उसके पास स्पीड होता है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी होगा, बिकॉज आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², सो वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। तो उसने सेकेंड पोस्टुलेट लिखा, कैथोड rays have mass and possess kinetic energy तो ये एक सेकेंड पोस्टुलेट आपको लिखना है। कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, पहला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज कैथोड रेज ट्रैवल have mass and possess kinetic energy, this is based on this observation he has made। तो उसके बाद आपने वो एनिमेशन में देखा कि this particular is going in a particular direction। now if I subject this particular to a electric field को मैं इसको सब्जेक्ट करता हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दो टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होंगे, तो उसको मैं रखता हूँ, तभी क्या होता है, he came to know that this particular dot या ग्लो जो है, ग्लो का पोजीशन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल तरफ हिट कर दिया, यानी कि डिफ्लेक्ट हो गया इस तरह, यानी कि पहले यहाँ पे दिखता था अभी वो यहाँ पे दिखने लगा। इससे मालूम पड़ा डेफिनेटली इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन बिकॉज वी हैव अप्लाइड स्लिट देयर, so slit won't allow that to happen। that means what, this is coming in this direction, that means यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन इस तरफ से वो हुआ रहेगा, तो वो भी किस तरफ हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो रहा है। तो उससे ये मालूम पड़ा कि दिस पर्टिकुलर इज हैपनिंग बिकॉज ये कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, because of that one it is deflecting towards positive terminal। now he has also done that, he has subjected this to a magnetic field को भी उसने उधर रख दिया, तभी जाके क्या हुआ, दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल जो है वो उस तरफ डायरेक्टेड था। दैट टाइम दिस पर्टिकुलर रेडिएशन डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है नेगेटिव चार्ज जो है वो नॉर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, यू गाइस मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। सो इससे उसको और एक चीज मालूम पड़ा कि कैथोड रेज जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। सो द नेक्स्ट पोस्टुलेट दैट यू हैव टू राइट, that cathode rays
when subjected to an electric field and magnetic field, they deflected towards negative positive terminal of the battery, positive terminal of electric field, and north pole of magnetic field, indicate that they are negatively charged. This is the next postulate that you have to remember. Okay, 3 postulates हमने पढ़ाई किया. As it is आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आएंगे. Which of the following is the postulate of cathode ray discharge tube experiment? तभी जाके पॉइंट्स आपको याद रहा तो उसमें से आप कौन सा राइट है कौन सा गलत है आप बोल सकते हो. Along with the pressure inside the tube and the voltage जो रखा था वो सब छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. ओके नाउ नहीं बेटा मैंने जितना स्क्रीन के अंदर दिख रहा है ना उतना ही मैंने रख दिया वैसे. दिस इज एक्चुअली दैट. चाहिए तो मैं डिक्टेट करता हूँ इसको. कैथोड रेज व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड they deflected towards positive terminal of electric field and north pole of magnetic field, indicating that they are negatively charged. Okay. चलिए लास्ट वाला मैं लिख लेता हूँ. चलो लास्ट वाला मैं यहाँ पे लिखता हूँ. This is the first one. This is the second one, and the third one I'm writing here. Cathode rays, I think this is visible. Yeah. Cathode rays when subjected to an electric field and magnetic field, they deflected toward negative terminal of electric field and north pole of magnetic field, indicating that cathode rays are negatively charged. तो ये लिख लो 3 पॉइंट्स. ओके देखो उनको खुद को नेगेटिवली रहने के लिए वो किसके तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए. पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए. तो मैं पहले पॉजिटिव लिखा तो अभी भी पॉजिटिव लिखूंगा बेटा वही करेक्ट है. ओके so these 3 points please write it down. मैं रब करूंगा मेरे पास दूसरा जगह नहीं है. You guys please copy it quickly. Okay. Now let us proceed further. तो अभी और एक पॉइंट आप अच्छे से आराम से लिख सकते हो. ये वाला ये होता क्या है. ये जो इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रे जो प्रोड्यूस हुए यहाँ पे. ओके समझो ये गैस को इलेक्ट्रिसिटी हिट करने के बाद गैस क्या हुआ कैटायन बन गया. अब ये वो मत समझ लो यहाँ एक पार्टिकल जैसा लिखा मैंने. ऑक्सीजन गैस भी समझ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यहाँ पे मैंने एक न्यूट्रल एटम को हिट करने के बाद वो कैटायन बन गया. उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. दैट्स हाउ आई एम शोइंग दैट. नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया व्हेन इट गोस फर्दर if it is colliding with another normal gas particle which is yet to get ionized, then what happens, ये क्या इलेक्ट्रॉन उधर आयोनाइज कर देगा. ओके उसको आयोनाइज कर देगा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि सामने जो गैस पार्टिकल मिल रहा है उसको भी हिट करना और उसको आयोनाइज करना.
So that means this is further ionized and there is one more electron got created. Because of that what happens, entire glass tube became glow, मतलब पूरा वो shiny shiny हो गया, पूरा glow हो गया. तो ये हमें as a fourth point लिखना है. So ओके ब्लर के लिए मैं ठीक कर रहा हूँ बेटा, रुको. I'm not saying anything. I'm just waiting to. I'm waiting for that to happen. I'm just using that properly. Let us see how it will work. I will wait, don't worry. So screen में मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, don't worry. You just write it down this one. अभी मैं कुछ स्क्रीन में नहीं लिख रहा हूँ, टेंशन मत लो. ये फोर्थ पॉइंट एक लिख लो. मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है ना, तो फोर्थ पॉइंट लिख लो. फोर्थ पॉइंट, that is cathode rays ionizes gas particles present inside the liquid. Cathode rays ionizes gas particles present inside the liquid. Cathode rays ionizes gas particles present inside the liquid. So cathode rays ionizes gas particles present inside the liquid. So screen थोड़ा blur अभी भी है, I know. Screen blur दिख रहा है, मैं अभी शायद लिख पाऊंगा. Now it is okay. Yeah. So I'm writing it again. Write down cathode rays ionizes cathode rays. पेन को क्या हो गया? Cathode rays ionize gas particles present inside the glass tube. तो वो क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं वो आपस में क्या होगा, फिर से सामने जो न्यूट्रल गैस पार्टिकल्स मिलेंगे उसको हिट करेगा, उसको भी आयोनाइज करेगा. सो दिस बिकम्स अ फिफ्थ. नाउ आई विल शो वन वीडियो. उस वो देखने के बाद हम लोग फिफ्थ पॉइंट देखेंगे. ओके, फिफ्थ पॉइंट हम लोग समझेंगे. वॉइस की जरूरत नहीं है बेटा, वॉइस की जरूरत नहीं है.
So here what we have to understand, the fifth point is important here now, कि आपने उसमें देखा उन लोगों ने क्या किया कि वंस ये जो गैस पार्टिकल्स है ये यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ट्रैवल करेगा सिटिंग पे। सो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, यार वोल्टेज के लिए मैं ई सिंबल यूज करूंगा और पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो ये क्या होते जाएगा, इसका डिफ्लेक्शन बढ़ते जाएगा, डिफ्लेक्शन और ज्यादा होते जाएगा। दैट मींस इफ आई इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज वो किसके ऊपर मैटर करता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है उसके ऊपर मैटर करता है। सो जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाते गया और वो डिफ्लेक्शन बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट इज इवन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं बी सिंबल यूज करता हूं। व्हेन आई अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड तब भी वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। व्हेन आई इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड देन द डिफ्लेक्शन विल बी मोर। Definitely if you supply north side towards that, then the deflection is towards north. If you supply south towards that, then deflection will be away from that. Okay, but deflection will happen. Electrostatic deflection मतलब क्या, कुछ ना कुछ वो चार्ज रिलेटेड डिफ्लेक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। तो उसने बहुत ही अच्छा काम ये किया, इलेक्ट्रॉन का मास पता नहीं था, ना ही उसका चार्ज पता था, बट उसने by knowing the distance between two electrodes, I will call it as length, and applied electric field, उसने क्या किया, समझो मैंने E जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, now that deflection has taken till here, तो यानी कि डिफ्लेक्शन यहाँ तक आ गया। अभी मैं साउथ के तरफ इसको अप्लाई करूंगा, यानी कि इन दिस वे। now what happens, इसको डिफ्लेक्शन अवे करना पड़ेगा। जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना शुरू किया, this will now start applying going, मतलब at the same time दोनों एक साथ में अप्लाई कर रहा हूँ। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इसको डिफ्लेक्शन यहाँ तक लेके आया, उसके बाद आई एम अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, thereby making south east towards that, now it will try to go deflect or try to go away from this। तो मैं इतना ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो ओरिजिनल पोजीशन तक चला जाए, ओरिजिनल पोजीशन तक चला जाएगा। तो व्हाट डज दैट मीन, इट मींस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो फील्ड को इक्वेट करके ये जो एंगल जितना, देखो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइंग। हायर द इलेक्ट्रिक फील्ड you apply more will be the deflection, that is very much straightforward। so ये जो थीटा है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हुआ, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो L है, वो सब वैल्यू यूज करके उसने क्या किया, he calculated E theta divided by B square L, where E is applied electric field, theta is angle of deflection, B is applied magnetic field, and length between, क्योंकि इसको टाइम भी लगता है ना ये पहुंचने के लिए। तो ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके उसने क्या कोशिश किया, देखो E is known to us, कितना अप्लाई किया वो हमें पता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आप निकाल सकते हो, B is known to us, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वो भी पता है, लेंथ हमें पता है, अपना इंस्ट्रूमेंट है। So by knowing all these values, he could calculate the value of charge by M, where E stands for charge of the electron, which was unknown to him. Mass was the electron, mass of the electron. M stands for mass of the electron, which is also unknown. But he could solve this particular equation, thereby he could get the ratio of them, that was come out to be minus 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kg, coulomb per kg। Okay, now B is magnetic force, मैंने बोला ना बेटा, B is not beta there, B is magnetic field, मैंने बोल दिया। Now minus 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kg, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। Why I tell you, see the unit here, coulomb is the unit of charge, kg is the unit of mass, मतलब coulomb per kg मतलब charge upon mass। So wondering thing here is that no matter which gas you keep here, for example helium gas रखोगे क्या, नियॉन गैस रख रहे हो, या हाइड्रोजन गैस, या ऑक्सीजन, कोई भी गैस रखो, he calculated charge to mass ratio of them, it was come out to be same all the time। देखो
अभी चार्ज ये सब आप कॉमन रखते जाओगे, यहाँ पे गैस चेंज करते जाओगे, तो उसको लगा कि चलो ये वैल्यू चेंज होना चाहिए। वैल्यू चेंज कब होगा? जब ये सब चीजों से जो बाहर निकालने वाला जो कंपोनेंट है वो वेरी होता रहा तो E by M ratio will vary. But now we understood that no matter which gas particle I keep inside the glass tube, every time I do this calculation, I am getting this value same. Charge to mass ratio was constant. This is indicating that all the matter is made up of electron. Electron is the fundamental particle. No matter which thing you keep there, electron is getting ejected out all the time. So electron बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि electron is the fundamental particle, not the atom. Atom is not the fundamental particle. Atom of different things go different, become different. बट इलेक्ट्रॉन ये एक ऐसा चीज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल बोलेंगे, जो हर कोई मैटर में रहता है। तो इससे ये मालूम पड़ा, कोई भी गैस रखो, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है ही। इसका फिफ्थ पॉइंट आप लिखोगे बेस्ड ऑन दिस, दैट इज आई रब दिस थर्ड पॉइंट। Fifth point I'm writing, cathode rays have constant charge to mass ratio. Charge to mass ratio उसका कांस्टेंट है, और वो वैल्यू जो है, देखो ये इक्वेशन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वैल्यू आपको पता रहना चाहिए, -1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई दिस नेगेटिव साइन हियर? नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? Very good, because it is electron and electrons charge is negative. ये ऊपर देखो चार्ज है तो वो माइनस अपॉन समथिंग तो आ ही जाएगा। वेरी गुड, कॉपी दिस क्विकली, और ये वैल्यू याद रखना है, और यूनिट के साथ कूलम पर केजी याद रखो। कभी कभी ऑप्शन में कूलम पर ग्राम रहेगा, कूलम पर ग्राम होगा तो ये वैल्यू में क्या फर्क आएगा बताओ? अभी यूनिट में कूलम पर ग्राम करता हूं, then how this value will change, where there will be a change, and how it will be, how much it will be. दिया बेटा, ये जो इक्वेशन कैसे आया, वो अपना सिलेबस में नहीं है, बिकॉज उसके लिए बहुत ज्यादा मैथ्स यूज करना पड़ेगा, मुझे फोर्स इक्वेट करना पड़ेगा, और वो वाला स्टडी आपका हुआ नहीं है अभी फिजिक्स में, तो इसलिए अभी उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये देखो, वो एनिमेशन में भी कोशिश किया कि उसका डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड। हाउ दिस इक्वेशन हैज रिलेटेड, हाउ दिस हैज मेड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इज, ऐसा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन उसने किया कि एलएचएस का वैल्यू पता था, आरएचएस का वैल्यू पता नहीं। ओके, इन दैट वे ही कैन गेट टू नो अबाउट E by M ratio. So, वो सिर्फ याद रखना है, ये इक्वेशन कैसे आया उसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यस मानस, यूर आपको पर केजी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, केजी से ग्राम करना पड़ेगा। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, 1 kg इज 1000 ग्राम, तो ये पर केजी को मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, वो चला जाएगा ऊपर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। ये 5 पोस्टुलेट्स आपको बाहर रखना है, so that any type of MCQs if arises from this, you guys must know how to solve this. Questions कैसे आएंगे? Which of the following is the postulate of cathode ray discharge tube experiment, or which is not? या मल्टी ऑप्शन करेक्ट ऐसे वगैरह क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट इज modified cathode ray discharge tube experiment.
मॉडिफाइड, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको. दिस इज अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन डन बाय गोल्डस्टीन. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे. सी स्टैंड फॉर कूलम ना, यूनिट ऑफ चार्ज. तो एक वीडियो देखते हैं इसका. देखो ये है अपना ये है अपना बच्चे जिनको पढ़ने का कोई मूड नहीं होता, और बट बर्बाद करने में तो पहले रहेंगे ये. ठीक है, मैं नहीं दिखाऊंगा इसको. तो अपना बच्चों से तो ये रहा नहीं जाता है ना, पंगा लेने से रहा नहीं जाता. उनको कुछ टाइम पास नहीं है उधर घर पे बैठ के, तो उनसे रहा नहीं जाएगा वो. तो आई डोंट वांट टू नो, मेरा वो क्या बोलते हैं, पेशेंस लूज नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे और भी लेक्चर लेने. सो लेट्स नॉट डू दैट. नाउ इसमें क्या होगा, यू हैव टू हैव अ मॉडिफाइड कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. डिस्चार्ज ट्यूब मॉडिफिकेशन बड़ा वाला कुछ नहीं है. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, you have to use a cathode which is perforated. Perforated मतलब उसमें holes होंगे. ओके, होल्स होंगे तो उसको बोलेंगे perforated cathode. Only this is the difference here. ये एक डिफरेंस होता है बस उतने. तो इसको कनेक्ट करेंगे एज यूजुअल हाई वोल्टेज बैटरी में, और यहाँ पे होगा एनोड. ये एनोड कैथोड तो डिपेंडिंग ऑन आप किसे इसको बैटरी में कनेक्ट किया, बेस्ड ऑन दैट. Everything is same. Everything is same. No difference at all. This is vacuum pump, and you can also use an ammeter here. No problem. Only the difference here is the cathode is having some holes. Why, you will understand that now. So everything is same. I will use some black color if it runs. So अभी समझते हैं यहाँ पे गैस पार्टिकल है, and electricity hits that. Okay, electricity उसको hit कर रहे हैं. नहीं, एनोड कुछ एमिट नहीं करता. रुको रुको, मैं बता रहा हूँ, एनोड को कुछ एमिशन नहीं होगा. ये जो इलेक्ट्रिसिटी हिट करके गैस पार्टिकल को इसने आयोनाइज किया, दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स गो इन दिस डायरेक्शन. अच्छा, बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू, द नेम इलेक्ट्रॉन is given by Stooney, scientist name called as Stooney. Remember this, because J.J. Thomson discovered electron, but he did not give the name as electron. He given it as cathode rays, but it was modified later as electron by scientist called as Stooney. Okay,
तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा और ये इसको हिट करेगा, हमें पता है। बट ये जो गैस अभी कैटायन बन चुका है और पॉजिटिवली चार्ज बन चुका है, व्हाट इट इज गोइंग टू डू, go in this direction of that negatively charged hoga, this is also negatively charged. So because of that, what happens, this will go in this direction, opposite to the direction of cathode rays. तो इसका नाम बोला गया एनोड रेस, बिकॉज इसका मतलब ये नहीं कि एनोड में कोई जनरेट होता है, इवन कैथोड रेस आल्सो गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन दिस, इवन एनोड रेस इसलिए बोलेंगे जो कैटायन जो है वो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इट डजंट मीन दैट इट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड एट एनोड। सो ये इस तरफ जाएगा, यहाँ पे जो होल्स होते हैं ना उसके थ्रू वो चला जाएगा एंड इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। और यहाँ पे बाहर से आप चाहिए तो एक पॉजिटिव वाला टर्मिनल लेके उसको एक्सेलरेट करा सकते हो, और एक्सेलरेट कराओगे तो दैट विल हिट दिस एरिया। ये एरिया को फ्लोरेसेंट मटेरियल से मैं कोट करूंगा, देन दैट एरिया विल बी ग्लोइंग नाउ। सो इसके थ्रू पास होगा, देखो पॉजिटिव नहीं, इसको तो नेगेटिव जगह से नेगेटिव एक रॉड लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा उसके तरफ, वरना तो ये होल के थ्रू चला जाने के बाद वो रिटर्न आना शुरू करेगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज हियर, सो उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। Now, this is also called as canal race. Why? Because canal race इसलिए क्योंकि ये देखो इसके कैनल के थ्रू चला जाता है, कैनल से थ्रू वो पास हो जाता है, that's why it is called as canal race. Okay, canal race करके बोलेंगे। So एनोड रेस भी इसका ही नाम है, पॉजिटिव रेस भी इसका ही नाम है, और कैनल रेस भी इसका ही नाम है। Now, instead of many holes, if I would have used single hole here, then what happens, ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन जो है वो इसके ये डायरेक्शन में चला जाएगा और यहाँ पे आके हिट करेगा, एक ही जगह पे हिट करता है, एक ही जगह पे हिट करेगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही ग्लो दिखता है तो आपको मालूम पड़ता है। सो दैट्स व्हाई द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट व्हिच इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कैथोड रेस, वो आप लिख सकते हो एज anode rays travel in a straight line from एनोड टू कैथोड। देखो ये फ्रॉम एनोड टू कैथोड मतलब एनोड में प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये तो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन इज एक्सप्लेन्ड हियर, एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जा रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, बेस्ड ऑन दैट, बट इट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन ओनली। So this is the first thing that you have to remember. Anode rays travel in a straight line from anode to cathode. ये एक कैनल के थ्रू प्रोड्यूस होता है या कैनल के थ्रू वो चला जाता है, तो that's why it is also called as canal rays. ये आपको याद रखना पड़ेगा। Anode rays are also called as कैनल रेस करके बोलेंगे, वो कैनल्स के थ्रू जाता है। और पॉजिटिव रेस बोल सकते हो, बिकॉज दे आर पार्टिकल होते हैं उनको हम गोइंग इन दिस। अब यहाँ पे आप पिन व्हील रखोगे तो पिन व्हील रोटेट होने लगेंगे, इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंट आप रोटेट के लिए सेम आप यहाँ पे करोगे, सेम गोस हियर आल्सो, mass kinetic energy, ये भी आप बोल सकते हैं बस। I'm seeing you PDF 2 now. I will stop now for some. PDF 2 please हुआ है अभी, मैं रुका हूँ। So write down the postulates till then.
नहीं रिपीट नहीं होगा बेटा, मुझे पता है कहाँ से हुआ है वो, आई एम गेटिंग दैट। सो आप पॉइंट लिख लो पहले, मेरा वॉइस तो सुनाई दे रहा है ना, सो यू जस्ट राइट इट डाउन। वॉइस सुनाई दे रहा है तो आप लिख लो। थर्ड पॉइंट लिखो, एनोड रेस हैव मास एंड possess kinetic energy. Okay, I will start from pinwheel again, don't worry. I hope now video is somehow clear. So अभी ये जो एनोड रेस है, ये एनोड रेस कैनल के थ्रू जाने के बाद अभी आपको पता है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एनोड रेस ही प्रेजेंट है। ये वाला एक ऐसा एरिया है यहाँ पे एनोड रेस ही प्रेजेंट है, बिकॉज कैथोड रेस तो इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे पिन व्हील रखा एंड पिन व्हील स्टार्टेड रोटेटिंग। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि even anode rays also have mass and possess kinetic energy. So third point लिखो, anode rays have mass and possess kinetic energy. So same चीज आपको फिर से रिपीट करना है। डिफरेंस ये है कि कैथोड नहीं बोलना है, अभी एनोड बोलना है। Now let us see the next point. अभी वेरी सिमिलर टू कैथोड रेस, यहाँ पे मैं पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आओ, तो आपको पता है कि इसका चार्ज ऑपोजिट है, तो इसलिए इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लेके आता हूँ नॉर्थ साउथ का। अभी नॉर्थ इस तरफ कनेक्टेड, इस तरफ डायरेक्टेड है, तो अभी भी आपको पता है कि पॉजिटिव तो नॉर्थ के आगे जाना चाहिए, सो इट विल डिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द नेगेटिव पोल, अदरवाइज इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स साउथ पोल। तो आप फोर्थ पॉइंट खुद लिख लो, फोर्थ पॉइंट लिख लो सब लोग। एनोड रेस व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एनोड रेस when subjected to an electric field and magnetic field they deflected toward negative terminal of electric field, negative terminal of electric field and south pole of magnetic field, south pole of magnetic field indicate क्या करता है, indicating that anode rays are positively charged. Anode rays are positively charged. सेकेंड पॉइंट जिनको रिपीटेशन चाहिए, मैंने उनको ऑलरेडी बताया, एनोड रेस पॉजिटिव कैटायन से बना हुआ है, तो उनको पॉजिटिव रेस बोलो, और वो कैनल्स के अंदर से चला जाता है तो वो कैनल्स रे बोलेंगे, बस उतना ही डिफरेंस है। फोर्थ पॉइंट जिनको नहीं दिखता है, they write down anode rays when subjected to an electric field and magnetic field, they deflect toward negative terminal of electric field and south pole of magnetic field, indicating anode rays are positively charged. Okay, so pin wheel rotate karta hai anode rays, that's the reason why we can say anode rays have mass and possess kinetic energy. देखो किसी को फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कोई रोटेट हो रहा है मतलब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होना चाहिए, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, इसका मतलब जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके पास मास और एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी होना चाहिए, वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। तो नोट इट डाउन, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कैथोड रेस जैसा ही है ये, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, ओनली द
things you have to write opposite because the charge is opposite. Now let me just rub this part. Now the last part, the last not उससे पहले एक part है, fourth point शायद. Now fourth point is already over. Fifth point. ये जो anode rays है, they also ionize gas particles. Anode rays ionize gas particles present inside the glass tube. Present inside the glass tube. मतलब ये जो एनोड रेस है उनके सामने कोई न्यूट्रल गैस पार्टिकल्स दिख जाता है जिनका आयोनाइजेशन हुआ नहीं है, उसको भी वो क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा. सो फिफ्थ पॉइंट लिखो, एनोड रेस आयोनाइज गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द ग्लास ट्यूब. ये एनोड रेस भी क्या करेगा, गैस को आयोनाइज कर देगा जो ग्लास के अंदर है. अद्विक, they are not losing any protons. आपको मैंने बोला ही है कि समझो हीलियम गैस मैंने रखा, इलेक्ट्रिसिटी हिट करता है तो ये क्या हुआ, हीलियम प्लस हुआ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया. So this is what now we are calling as anode rays. So even if I go for let us say neon, इलेक्ट्रिसिटी हिट करता है और नियॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और अभी ये होगा अपना एनोड रेस. तो यहाँ पे प्रोटॉन किधर निकल गया, ये तो खुद वो जो गैस एटम है, गैसियस एटम है जो अभी कैटायन बन चुका है, उसी को तो एनोड रेस बोल रहे हैं. अभी प्रोटॉन नहीं हो रहे. इंस्टेड ऑफ, आप ये मत बोलो कि इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी प्रोटॉन निकालना शुरू किया. नो, प्रोटॉन निकालना शुरू होता है तो दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन एंड वो इतना छोटा ट्यूब में हैंडल नहीं कर सकते. ये प्रोटॉन इज गेटिंग आउट. न्यूक्लियर फोर्स को ब्रेक करके प्रोटॉन बाहर आना मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो. नाउ नोबल गैसेस की जरूरत नहीं है, आप हाइड्रोजन को भी ले लो. हाइड्रोजन को पहला हिट करोगे तो वो दो हाइड्रोजन एटम्स बन जाएगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटम बन जाएगा और फर्दर उनमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल के वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. सो अभी दो हाइड्रोजन, इसलिए मैं दो लिखूंगा. सो इवन ऑक्सीजन भी फॉर दैट मैटर, ऑक्सीजन को भी ऐसे लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन हिट करता है तो वो ऑक्सीजन का बीच का मॉलिक्यूल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये ऑक्सीजन भी अभी क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा एंड इट विल रिमूव आउट इलेक्ट्रॉन. सो जो भी यहाँ पे कैटायनिक बना हुआ है, जो भी कैटायनिक बना हुआ है, we are calling them as anode rays or canal rays और पॉजिटिव रेस. मतलब गैस का मॉलिक्यूल ही है, गैस का एटम ही है वो, बट अभी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया. So let me just rub this part now because here very important thing we are going to study. एक thing आप एक notice कर सकते हो after giving this explanation. Whenever you change the gas, do you think the anode rays which is going to form is the same? If you keep the gas as helium, then your anode rays is helium plus. If you keep neon as the gas here, then the anode rays that you get is neon plus. If you keep hydrogen as a gas here, you will get H plus as a anode rays. ऑक्सीजन रखोगे तो ऑक्सीजन एज अ एनोड रेस मिलेगा. तो बोलने का मतलब ये है, यू हैव टू रिमेंबर हियर कि एनोड रेस इज नॉट अ फंडामेंटल थिंग या फंडामेंटल पार्टिकल हियर. एनोड रेस इज एक्चुअली अ कैटायनिक फॉर्म ऑफ गैस पार्टिकल, गैस का एटम का कैटायनिक फॉर्म. तो उसके लिए जो हमने फिफ्थ पॉइंट वहां पे रखा है, गैस कैथोड रेस पे जो फिफ्थ पॉइंट हमने देखा, उसको यहाँ पे आप समझो. E/m रेशियो जो मिलेगा, ओके, E/m रेशियो जो यहाँ पे मिलेगा, when you keep helium you will get something else, when you keep hydrogen you will get something else. So मतलब हर टाइम चार्ज टू मास रेशियो जो है वो अलग होगा. क्यों अलग होगा, चलो मैं ये बता देता हूँ. हीलियम का जो एनोड रेस बनेगा हीलियम प्लस, हाइड्रोजन का जो एनोड रेस बनेगा H प्लस,
नियॉन का बनेगा तो नियॉन प्लस, ऑक्सीजन का बनेगा तो O प्लस। तो ये सब क्या है, ये सब एनोड रेस है ना। भले मैंने 1 प्लस करके चार्ज को तो 1 यूनिट ही रखूं, चार्ज को 1 यूनिट रख देता हूं, बट मास जो है, मास इज वेरिंग हियर। सो अनलाइक इलेक्ट्रॉन, हियर मास ऑफ हीलियम इज डिफरेंट। ये तो 4 AMU मास है इसका, हाइड्रोजन का 1 AMU मास, नियॉन का 20 AMU मास, ऑक्सीजन का 16 AMU मास। So every time mass is getting changed, मास अलग अलग। अभी देखो मैंने इसको, आप बोल सकते हो क्या मैं हीलियम 2 प्लस नहीं कर सकता क्योंकि हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, आप बिंदास कर सकते हो, बट H को तो नहीं कर सकते क्योंकि H में एक ही इलेक्ट्रॉन है। नियॉन को क्या मैं 2 प्लस कर सकता हूँ, आप कर सकते हो। नियॉन को क्या मैं 3 प्लस कर सकता हूँ, I can do that. They still be called as anode rays. They will be called as anode rays. ऑक्सीजन प्लस 2 कर सकता हूँ, that all depending on how forcible या how high voltage you are supplying to eject out the electron. ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उनमें से, ऐसा। So these all are called as anode rays, but for the time being what I do is I won't go for 2 plus thing या 3 plus 3, I just only go for 1 plus। तभी जाके चार्ज को तो मैंने कांस्टेंट रख दिया, चार्ज को मैंने कांस्टेंट रख दिया। नाउ मास जो है, मास इज वेरिंग, हीलियम, हाइड्रोजन और नियॉन का मास अलग अलग है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 6 पॉइंट, दैट कैथोड रेज, नो सॉरी, एनोड रेज, ओके, एनोड रेज हैव different charge to mass ratio, different charge to mass ratio, because this is the varying thing that you understood from anode rays and cathode rays। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, E by M रेशियो किसका कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ कैथोड रेज का कांस्टेंट है, एनोड रेज का E by M रेशियो इज नॉट कांस्टेंट। तो एनोड रेज का E by M रेशियो अलग अलग है। अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आई हैड टोल्ड यू that this is about discovery of proton, but nowhere we have understood about proton here, only we were talking about the ionized gas form। आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो प्रोसेस को आयोनाइजेशन ही बोलेंगे, बिकॉज न्यूट्रल एटम बिकम्स नाउ आयन। ये जो आयोनाइजेशन प्रोसेस के बाद जो एटम क्या हो जाएगा, आयन बन जाएगा, और उसको हम लोग अभी एनोड रेस बोल रहे हैं बिकॉज इट इज गोइंग टुवर्ड्स कैथोड फ्रॉम एनोड। अभी प्रोटॉन का जिक्र कहाँ करेंगे, नाउ लुक एट हाइड्रोजन प्लस। हाइड्रोजन प्लस के केस में आप देखोगे, वी नो हाइड्रोजन एज अ एटम, आप देखते हो हाइड्रोजन एज अ एटम देखोगे, सो इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन वाइज 0। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक है और प्रोटॉन एक है। व्हेन आई से H प्लस बोलता हूं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी चला गया, अभी इलेक्ट्रॉन 0 न्यूट्रॉन 0 हुआ। सो इफ यू लुक एट H प्लस, सो एक्चुअली उसमें है क्या, अभी H प्लस में अभी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बाकी है, यानी कि H प्लस को, यानी कि हाइड्रोजन को एज अ गैस मैंने रखा रहेगा इसके अंदर, और ये जो प्रोसेस होने के बाद जो H प्लस बन गया, which is now we are calling as anode rays, so this H plus can be said as proton। why? because now वो H प्लस मतलब अभी उसमें प्रोटॉन ही बाकी रह गया। so charge to mass ratio of H plus can be said as charge to mass ratio of proton। charge to mass ratio of proton किसका होगा, जब आप हाइड्रोजन एज अ गैस रखोगे, हीलियम एज अ गैस रखोगे तो वो वाला नहीं होगा। सो प्रोटॉन का E by M रेशियो आपको हाइड्रोजन एज अ गैस रखने से मिल जाएगा, बिकॉज वंस इट गेट्स आयोनाइज्ड यू आर हैविंग ओनली प्रोटॉन, उसमें प्रोटॉन ही बच जाता है। नाउ लेट अस कैलकुलेट दैट, ओके, H plus as a anode rays, H plus as a anode rays if I do, पता नहीं आज इसको क्या हो रहा है, बार बार इसका वॉइस का क्या हो रहा है पता नहीं। नाउ वीडियो आई गेस इट इज लुकिंग ओके, वॉइस इज ओके। चलो नाउ
H प्लस को मैं एज अ एनोड रेस बताता हूँ and I will calculate the E by M ratio here. देखो अभी तो मैं इसलिए ये बाय एम रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि चार्ज H प्लस का यानी कि 1 यूनिट चार्ज होता है इधर और मास इसका क्या है 1 AMU मास। ओके उसको बेटा ऐसा आउट ऑफ तो यही नहीं है तो मेरा स्क्रीन में तो दिख रहा है, तुम लोग का स्क्रीन में क्यों नहीं दिख रहा है? आप मोबाइल में देखते रहोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, मोबाइल में एक स्क्रीन इतना छोटा है कुछ नहीं दिखेगा, यू हैव टू यूज लैपटॉप। और देखो मेरा भी यहाँ पे स्क्रीन है, आई एम आल्सो सीइंग हियर हाउ मच इज विजिबल हाउ मच इज नॉट, सो बेस्ड ऑन दैट ओनली आई एम जस्ट राइटिंग। So H plus as an anode rays if I take H plus as an anode rays if I take now E by M ratio if I want to calculate, अब ये प्लस है मतलब एक ही प्लस है यानी कि 1 यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज डिवाइड बाय ये हाइड्रोजन है उसमें अभी एक ही प्रोटॉन है यानी कि हाइड्रोजन का मास हमें पता है 1 AMU है मास। Now if I calculate this हमें पता है 1 यूनिट चार्ज is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb and that of 1 AMU is 1.6 into 10 raised to minus 24. I will keep in kg 27 kg because coulomb per kg is the common unit here. So ये कहाँ से आ गया वो कोई बच्चा पूछता रहेगा, then I will tell you 1 unit charge by heart this 1 unit charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb है, ये आपको पता रहना चाहिए कूलम। ओके एंड 1 AMU is equal to 1.6 into 10 raised to minus 27 kg, ये आपको बाहर करके रखना पड़ेगा कन्वर्जन के लिए। Now when you calculate this is roughly come out to be 1 into 10 raised to minus 19 into 10 raised to 27, 10 raised to minus 27 को मैंने ऊपर ले लिया, this is 1 into 10 raised to so 28, so 8 coulomb per kg. Okay 1 into 10 raised to 8 coulomb per kg. So इसमें आपको क्या समझ में आ गया, चार्ज टू मास रेशियो जो एनोड रेस का होगा जिसमें मैंने गैस H प्लस रखा है, हाइड्रोजन गैस रखा है जो H प्लस एनोड रेस किया है, so that was giving me charge to mass ratio as 1 into 10 raised to 8 coulomb per kg। तो ये हुआ आपका प्रोटॉन यानी कि H प्लस को मैं प्रोटॉन भी बोल सकता हूं। ओके बिकॉज H प्लस में भी प्रोटॉन ही बाकी है। So if I ask you guys to calculate E by M ratio of H plus and neon plus, can you guys calculate this? Calculate and tell me E by M ratio of He plus and Ne plus. मोबाइल में स्क्रीन छोटा होगा और मोबाइल में ठीक से दिखेगा नहीं बेटा, लैपटॉप रहा तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा, स्क्रीन बड़ा होगा। मोबाइल में देखो मैं लिखता भी छोटा हूँ और उसकी वजह से और तुम लोग मोबाइल स्क्रीन में और छोटा हो जाएगा। So calculate E by M ratio. Let us see how many of you are able to calculate E by M ratio of helium plus and neon plus. The concept is same. He plus का केस में चार्ज कितना एक यूनिट था, 1 यूनिट चार्ज, मास कितना हाइड्रोजन का 1 AMU मास है, तो वो डिवाइड किया, कन्वर्जन मैंने दे दिया आपको यहाँ पे, चार्ज AMU टू kg का कन्वर्जन दिया और यूनिट एक यूनिट चार्ज का कूलम में कितना वो भी दे दिया। So you guys simply calculate
ओके, आदित्य ने आंसर दे रहा है। बेटा नियॉन का 18 आ रहा है पक्का, 10⁻18 आ रहा है क्या, चेक कर लो। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास बाहर करना कंपलसरी मैंने बोला है। एक टॉपिक भी हो गया, अभी तक तुम लोग को वो बाहर करके नहीं हुआ है। दिस इज द सेकेंड टॉपिक। वो तो पहला टॉपिक में बाहर करना था। वी आर गोइंग टू यूज देम लेटर ना, ऐसा नहीं कि हम लोग उनको तभी के तभी भूलने वाले। ओके चलो अभी मैं बताता हूँ। हीलियम प्लस हमें E/m रेशियो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे अभी भी चार्ज 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट चार्ज है और मास ऑफ हीलियम लगाना पड़ेगा। 1 यूनिट चार्ज तो 1.6 × 10⁻⁻19 होगा और मास ऑफ हीलियम इज 4 AMU है और AMU से केजी में कन्वर्ट करना पता है, into 10⁻27 kg। तो मास ऑफ हीलियम इज 4 AMU और 4 AMU को मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 × 10⁻27। सो अभी 1/4 × 10⁻⁻19 × 10⁻27। So this is 0.25 × 10⁻8. So 2.5 × 10⁻7 कूलम पर केजी। So 2.5 × 10⁻7 कूलम पर केजी किसी का आंसर नहीं है। रिधिजा 10⁻18 कैसे, चेक कर लो। नियॉन का नियॉन प्लस E/m रेशियो अभी फिर से 1 यूनिट है, 1 यूनिट चार्ज अपॉन मास ऑफ नियॉन। अभी 1 यूनिट चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। मास ऑफ नियॉन इज 20 AMU। अभी 20 AMU को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। So now what happens, 1/20 × 10⁻8 बन जाएगा। 1/20 is 0.05 I guess, 0.05 × 10⁻8 कूलम पर केजी। और इसको और अच्छे से कर पाओगे तो 5 × 10⁻6 कूलम पर केजी। So 5 × 10⁻6 कूलम पर केजी। हाँ you can आप 25 रख सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको ये साइंटिफिक नोटेशन चीज पता है ना, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा हमेशा। साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या है, मतलब एक लेटर के बाद बी पॉइंट आएगा, उसके बाद का जो भी लेटर है एक लेटर आपको और लिखना पड़ेगा और उसके बाद सब कुछ 10⁻टू समथिंग में लिखना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू हैव राइट साइंटिफिक नोटेशन। एक नंबर उसके बाद इमीडिएट पॉइंट, आप इसको 2.5 तरीके में लिखना पड़ेगा। ये भी गलत होगा, 25 भी गलत होगा। दैट इज हाउ यू हैव राइट, दिस इज करेक्ट लाइक दैट। ये साइंटिफिक नोटेशन का आदत लगा लो, बिकॉज लेटर ऑन उसका ही बार बार यूज करें। नेक्स्ट इज एक चीज आप यहाँ पे देख लो, हीलियम प्लस H प्लस हीलियम प्लस एंड नियॉन प्लस, इनका जो E/m रेशियो का ऑर्डर जो है, आप देखो नियॉन का मास ज्यादा है, जिनका मास ज्यादा होता है उसका रेशियो सबसे कम आता है। देखो दिस इज 5 × 10⁻6,
दिस इज 10⁻⁷, मतलब ज्यादा है. So as mass increases, E by M ratio decreases. Okay, as mass of anode rays increases, E by M ratio decreases. ये याद रखो. Okay, so order पूछा जाता है कि write down the order of E by M ratio of something. तो mass के हिसाब से वो change होगा. You have to write that. Yes, yes, Ritija, they are inversely connected. So I'm going to rub this part, quickly note down. अपने पास कितना टाइम है अभी? How much time we have? Please somebody tell me. Okay. Now एनिमेशन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा. एनिमेशन आप घर पे देख लो. अभी मैं एनिमेशन तो कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ. Now we will see discovery of radioactivity. Discovery of radioactivity. Hydrogen has the largest E by M ratio. Perfectly correct. अर्थ बराबर बोल रहे हो. Okay. Now discovery of radioactivity. Anthony Becquerel. Anthony Becquerel discovered radioactivity. This is very important point that you have to remember. Anthony Becquerel ने क्या किया? जितना भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पता था तभी, जब वो जिंदा था तब का, जितना भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पता था उनके बारे में स्टडी किया उसने. ओके, एक लेड चेम्बर यूज करके अलग अलग रेडियोएक्टिव एलिमेंट का जो रेडिएशन एमिट करता है उसके बारे में उसने स्टडी किया. लेड चेम्बर इसलिए यूज करते हैं बिकॉज लेड चेम्बर एब्जॉर्ब्स ऑल न्यूक्लियर रेडिएशन. न्यूक्लियर रेडिएशन जो होता है उसको लेड एज अ एलिमेंट वो एब्जॉर्ब करता है. थिनर नहीं, थिकर, एकदम थिक वाला चाहिए. थिन में तो आराम से पास हो जाएगा. तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनका रेडिएशन को वो स्टडी करना चाहता था, तो इसलिए एक स्मॉल ओपनिंग रखा so that radiation can only go in this direction. और यहाँ पे उसने एक डिटेक्टर रख दिया, डिटेक्टर which is also coated with a fluorescent material, और एक ही जगह उसने जाने दिया तो you can easily understand glow सिर्फ यहाँ पे आएगा. So he wanted to study about this. PB stands for lead. So उसको स्टडी करना था तो उसने क्या किया, जस्ट सब्जेक्टेड दिस पर्टिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. मेरे पास जो पेन है ना पूरा मिस्टर इंडिया पेन है, सब मिस्टर इंडिया हो चुका है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है दो टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं. उसको आप चाहिए तो बैटरी का कनेक्शन दिखा सकते हो जिसकी जरूरत नहीं है वैसे. सो ही सब्जेक्टेड देम टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सब्जेक्ट किया उसने. तो नाउ there were some radioactive elements, they were emitting the radiation that was going undeflected and reaching the detector like this. ऐसे कुछ रेडिएशन एमिट हो रहा था, वो जो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा था. कुछ ऐसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पे जो रेडिएशन एमिशन हो रहा था तो उनको कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, तो उसका नाम उसने बोला गामा रेज. ओके, तो ऐसे कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स उसने यहाँ पे रखा और उसका जो रेडिएशन बाहर निकल रहा था they came undeflected and went and reached the detector and that are called as gamma rays. इससे आपको मालूम पड़ेगा कि गामा रेस ऐसा है इनका कोई चार्ज नहीं है और लेटर वी केम टू नो दैट उनका कोई मास भी नहीं है. सो चार्ज और मास आप जीरो समझोगे. सो चार्जलेस है इसलिए वो अनडिफ्लेक्टेड चला गया. बट ऐसे भी कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स थे, व्हेन दे वर सब्जेक्टेड they emitted radioactive element radioactive radiation that deflected towards positive terminal. और ऐसे भी थोड़ा कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स था जो
डिफ्लेक्ट हो गया, ये क्या पेन, they deflected towards negative terminal. तो इससे ये क्या मालूम पड़ा, there are three different types of radiations. One goes undeflected, that was called as gamma rays. The one which deflected towards positive terminal was called as beta rays. Yeah, I would call it as beta particle. Beta particle. Now, बात देखो, आप चार्ज वाइज आप तो पता कर ही सकते हो कि इसका नेगेटिव चार्ज है, बाद में लेटर समझ में आएगा कि उसका मास जो है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम था, उसको जीरो समझा गया. And there were some radiations, they deflect towards negative terminal. This is negative and this is positive. So ये वाला रेडिएशन को अल्फा पार्टिकल बोला गया, और ये जो डिफ्लेक्शन नेगेटिव की तरफ कर रहा है तो उसका तो पॉजिटिव होना जरूरी है. तो बाद में पता चला कि अल्फा पार्टिकल जो है वो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन को बाहर कर देता है, यानी कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इनमें से दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन कलेक्टिवली बाहर आता था इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल. सो आप बोल सकते हो अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ two protons and two neutrons. Now, two protons and two neutrons, so collectively mass will become 4 units. 4 units का mass हो जाएगा, और चार्ज तो सिर्फ प्रोटॉन कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रोटॉन 2 है, so इसलिए +2 is the charge. So beta particle looks like, its charge and mass parameter looks like that of electron. Electron is also represented like this, but remember beta particle is not electron. Electron नहीं है ये, beta particle कुछ और ही है, बट इसका चार्ज और मास जो है वो थोड़ा सा क्या रिसेंबलिंग है, रिसेंबल करता है. और अल्फा पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन 2 रखता है और न्यूट्रॉन 2 रखता है, वो कलेक्टिवली एक पार्टिकल बन के बाहर जाता है. So these three different types of radiation you have to remember: alpha particle, beta particle and gamma rays. Now gamma is actually continued as rays because it does not have any particle nature, यानी कि उसका मास लिटरली जीरो है. लिटरली जीरो मतलब एक्चुअली जीरो ही है. बीटा पार्टिकल का हम लोग ने अज्यूम किया है जीरो बिकॉज विच इज नेग्लिजिबल इन मास. नेग्लिजिबल अमाउंट रहा तो उसको ऑलमोस्ट जीरो कंपेयर टू प्रोटॉन. कंपेयर टू प्रोटॉन आप कंपैरिजन तो चाहिए नेग्लिजिबल के टाइम पे, कंपैरिजन तो प्रोटॉन के साथ किया गया है. देन we came out that the mass is negligibly small, so we consider zero. So this is not actually zero. Negligible is zero. This is actually zero. So that's why this is called as particle and this is called as rays. Now we have to study about them. ये तीन रेडिएशन जो निकलता है इनके बारे में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. You guys make this particular first. Now size wise आप देखोगे, कंपैरिजन में साइज से शुरू करता हूं. साइज वाइज इट इज वेरी मच इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड. अल्फा पार्टिकल जो है वो बिगेस्ट इन साइज है. देखो वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को रखता है तो साइज तो काफी बड़ा होगा कंपैरेटिवली, फॉलोड बाय बीटा एंड देन गामा. ओके, गामा का साइज बहुत ही छोटा है बिकॉज़ उसका कोई मास ही नहीं है. सो यहाँ पे मास का बेसिस पे मैंने ये साइज बता दिया. 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स लिखा है. देवश्री क्या बोल रहे हो, ये 2 प्रोटॉन लिखा है ना, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन का बात कहाँ किया. न्यूट्रॉन का मास 0 किधर रखा है सिद्धि. न्यूट्रॉन का मास किधर रखा है मैंने, 0. ये नीचे का हमेशा क्या होता है, वो चार्ज होता है, ऊपर का हमेशा मास होता है. सो मास में तो मैंने 2 न्यूट्रॉन का मास को कवर कर दिया है ना, काउंट कर दिया. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे आई थी अभी नहीं, थोड़ा इसके बाद ही देखने वाले हैं, बिकॉज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हैपेंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसलिए हम लोग वो टाइम लाइन में जा रहे हैं. So size of alpha, beta, gamma, if you see, alpha is bigger in size. Now, इसमें आ जाएगा पेनेट्रेशन पावर समझने का. पेनेट्रेटिंग पावर,
पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा? ओके, नाउ पेनिट्रेटिंग पावर मतलब क्या होगा? थिंक ऑफ मुंबई लोकल ट्रेन. नाउ यू कैन नॉट थिंक बिकॉज यू ऑलमोस्ट फॉरगेट दैट, बट बस में या स्कूल बस में बहुत रश होता है, तो यू ट्राई टू पेनिट्रेट इनसाइड द बस बाय जो भी गैप दिखे उसके थ्रू आप भागने की कोशिश करोगे, तो उसको पेनिट्रेटिंग पावर बोलेंगे. ना जिसका आपको पता है जो मोटा रहता है बच्चा, वो उसमें पेनिट्रेट अच्छे से नहीं कर पाएगा, और जो पतला सा रहता है वो कैसे भी जगह बना के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा. तो you guys can easily understand who is highly penetrative and who is not. जो साइज वाइज बिगेस्ट साइज का हो वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा. अभी पेनिट्रेशन के लिए मैंने एग्जांपल आपको इनका केस में ये बता सकता हूँ. थिंक ऑफ अ शीट हियर. ओके, नाउ लेट अस से अल्फा बीटा और गामा एनीथिंग इज कमिंग हियर. हमें ये तो दिखाई नहीं दे रहा, बट आप इसको जूम करके इमेजिन करो, जूम करके देखोगे तो आपको यहाँ पे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स जो कॉइल बन के हैं, बिकॉज ये तो सेल्यूलोज से बनता है, तो आपको पता है कि सेल्यूलोज कॉइल बन के रहेगा. जितना भी कॉइल बने, बीच में तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थोड़ा तो हो ही जाएगा. सो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जितना छोटा साइज का होगा, उतना ये रेडिएशन को अंदर जाने में प्रॉब्लम होगा. ओके, बिगर द साइज ऑफ दैट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, greater will be the ability of this radiation to enter. अभी मैं ये जो पेज सेम लेता हूँ, अल्फा पार्टिकल को ट्रैवल करने बोलूंगा, बीटा को बोलूंगा और गामा को बोलूंगा, तो आप अच्छे से बोल सकते हो गामा इज हाईली पेनिट्रेटिव. गामा तो अच्छे से जा पाएगा बिकॉज उसका साइज भी नथिंग है, और यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत छोटा साइज का है. तो अल्फा पार्टिकल कैन नॉट पास, बट दैट ऑफ द गामा कैन, एंड द बीटा कैन, डिपेंडिंग ऑन हाउ थिक इज. अभी ये शीट्स में बढ़ाते जाऊंगा तो थिकनेस विल इंक्रीज. कहीं ना कहीं ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो रहता है वो क्या होगा, उसका साइज छोटा होते जाएगा, बिकॉज इधर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस दिखते रहेंगे उसको कवर करने और एक शीट आ जाएगा, उसको और छोटा करने और एक शीट आ जाएगा, बिकॉज ऑल आर नॉट सिमेट्रिक, राइट. कॉइलिंग तो किधर भी हो सकता है. सो पेनिट्रेटिंग पावर वाइज आप देखोगे अल्फा इज लीस्ट पेनिट्रेटिव, देन ग्रेटेस्ट विल बी गामा. नाउ इसका ये ऑपोजिट होता है आयोनाइजिंग पावर. आयोनाइजिंग पावर, ये आयोनाइजिंग पावर क्या होगा? जो बस का मैं बात करूं, आप एक ट्राई करो कि बस के अंदर घुसने के लिए, और बस में ऑलरेडी बहुत भारी लोग मतलब गेट पे है, अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और आप ट्राई करते रहोगे, तो ट्राई करते वक्त वहां पे थोड़ा झगड़ा भी होगा, मारपीट होगा कभी कभी, और तलवार वगैरह रहा तो वो भी यूज करेंगे. तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, जिनको पेनिट्रेट करने अलाउ नहीं करते हैं, तो वो क्या करता है, वो जगह पे हीट अप हो जाता है, हीट हो जाएगा. यानी कि आपको बता, अभी तो गर्म हो गया माहौल, ऐसा बोलेंगे ना कि वहां पे तो झगड़ा चल रहा है. इट इज लाइक दैट ओनली. जो रेडिएशन को अलाउ नहीं करता अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, वो कंटिन्यूअसली हिट करते रहेगा वो जगह. अभी वो कंटिन्यूअसली हिट करते रहेगा, उसको पेनिट्रेट होने नहीं दे रहा है, तो वो जगह क्या होगा, हीट हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा. एंड हीट अप होने की वजह से क्या होगा, वो जगह पे जो भी मॉलिक्यूल्स थे या कोई एटम्स थे, they will eject out their electron. Now why they eject out electron? Continuously heating will generate some friction, and friction will generate some heat, and this generated heat will eject out the electron which is present there. तो ये जो गैस ने करा क्या, ये गैस ने वो जगह का एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन कर दिया. वो कौन कर सकता है, जो अलाउ पेनिट्रेट नहीं कर पाता, वो करेगा क्या, आयोनाइजेशन. वो आयोनाइजेशन करेगा. तो आयोनाइजिंग पावर के हिसाब से आप देखोगे तो हाईएस्ट आयोनाइजिंग होगा अल्फा, फॉलोड बाय बीटा, देन गामा. ओके, तो अभी जाएगा, अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे स्पीड. स्पीड का भी रिलेशन हमें देखना जरूरी है. कैंसर, यस, दीज ऑल देयर, वही है ना, कैंसर के लिए वही है ना, कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन विल make the things go worst and the person will get cancer. अच्छा, स्पीड वाइज आपको क्या ऑर्डर लगता है? आपको तो पता है कि जो पतला रहता है वो जल्दी भागता है, और ये मोटा रहता है वो भाग नहीं पाता. तो स्पीड के हिसाब से आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए?
अल्फा जो है उसका स्पीड कम होगा, फॉलोड बाय बीटा एंड देन गामा। ओके, जो पतला रहेगा वो ज्यादा भाग पाएगा, जो मोटा रहेगा वो जल्दी भाग नहीं पाएगा। दिस इज द ट्रिक टू रिमेम्बर। नाउ स्पीड भी आप याद रख सकते हो, गामा का स्पीड जो है सेम एज दैट ऑफ लाइट, सेम एज दैट ऑफ लाइट। लाइट जितना ही है, वो कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लाइट जितना ही है। बीटा का थोड़ा सा कम बोलना पड़ेगा, विच इज 9/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 9/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का 9/10 पार्ट मैं निकालू, सो दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। अल्फा का 1/10 पार्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो ये कभी भी एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको ये बाहर रहना चाहिए, बाहर रखना पड़ेगा। कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। सब समझ आ गया रिविजा को, ऋषा को, जय को? स्पीड ऑफ अल्फा प्लस स्पीड ऑफ बीटा। ओके, आई थिंक यू आर करेक्ट। देखो जो बच्चे कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं। नाउ देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो मैं वर्कशीट दूंगा आज, बट इंपॉर्टेंट ये है, ये छोटे छोटे पॉइंट ही यहाँ पे याद करना पड़ेगा। एनिमेशन वगैरह दिखने का मेरा तो मन होता है, बट तुम लोग उसको गलत यूज कर लेते हो कुछ बच्चे, इसलिए मैं क्या करूंगा, उसको अवॉइड करूंगा और वो ग्रुप में एज अ एनिमेशन आपको घर पे देखने के लिए दिखा देता। और हाँ, वर्कशीट में एक 10 क्वेश्चन का वर्कशीट दे देता हूँ। ये राघवेंद्र देखो क्या कुछ भी मेरा टांग खींच रहा है। हीरा हीरा और ये सब बच्चे तो आईजीएस के बच्चे हैं। आप प्रियान बोलो, डाउट क्या बताओ। टीसी का मतलब क्या अर्जुन? प्लीज ओनली टीच। अच्छा, पार्थ ट्राई करता हूँ बेटा। यस, वर्कशीट ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन इसके ऊपर मैं एक छोटा छोटा बना के लेता हूँ। यू कैन लीव नाउ, अभी तो नया लेक्चर शुरू होने वाला है ना, तो यू स्टार्ट लीविंग फ्रॉम हियर। व्हाट डज आर स्टैंड फॉर? अभी मुझे आर देखना पड़ेगा। आर नहीं है बेटा, वो गामा है, गामा गामा गामा। आर तो ये है ना, गामा आपको ऐसा करना पड़ेगा, एक उसका बड़ा करना पड़ेगा साइड। गामा वो आर नहीं है। गामा एंड आर आर डिफरेंट। गामा में एक साइड ऊपर करो, इनमें दोनों सेम रखो। मैंने तो हर जगह वो कोशिश किया। चलो बाय, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ।